xk01, xk02, xk03, xk04, xk05 and xk06. Okay, xk01 is to create the vendor master record. xk02 is to change, display, display changes, block, unblock vendor master, and delete vendor master. ठीक है. Now we will create a vendor. We will change display, display changes. xk05 block, unblock. Rest everything is similar to mm01, mm02, mm03, mm04. mm05 is not there and mm06. ठीक है. तो xk01 से लेके xk06 सब सेम ही है जैसे हमने मटेरियल मास्टर में देखा था. व्हाट इज चेंजिंग? xk05 block, unblock. Now we will discuss. First, let us create a vendor master record. Okay, create vendor, and you can see vendor, company code, purchasing organization, and account group. Now in vendor master, just like in material master, we have various departments, user departments. For that, to enter the data of those departments, we use material master views. In vendor master, there are only two departments which are responsible for vendor master. One department is finance department and other department is purchase department. So there are two stakeholders in vendor master data. One is finance department and other is purchasing department. These two departments are major stakeholders of vendor master data because finance department is responsible for paying the vendor. वेंडर से जो भी मटेरियल माल हम ले रहे हैं उसका पेमेंट कौन करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है related to payment. Okay, and purchase department is for ordering the material. परचेस ऑर्डर क्रिएट करना, प्राइस का निगोशिएशन करना, कितना क्वांटिटी का ऑर्डर देना है नहीं देना है, all these things are decided by the purchase department. So these are the major two stakeholders in the vendor master data, finance and purchasing department. So here on the screen you can see company code and purchasing organization. So finance details are maintained at company code level and purchasing organization. Purchasing related details, purchase order detail, purchase order create करने के लिए vendor master में जो भी details होने चाहिए, those details are maintained at purchasing organization level. So organizational levels in vendor master data, right? मटेरियल मास्टर में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स में हमने देखा था कौन से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स यूज होते हैं. क्लाइंट, जनरल डेटा इज स्टोर्ड एट क्लाइंट लेवल, देन प्लांट and storage locations. These are the three organizational level used in material master, right? In vendor master, organizational levels used are client will be there, general data like address of the vendor, name of the vendor, all these details will be stored at client level, company code level, and purchasing organization. And if we want to maintain, we can maintain the data at
plant or vendor sub-range level as well. So if there is a question, what are the organizational levels used in vendor master record? The answer should be client, company code, purchasing organization. And if we want to maintain, we can maintain it at plant or vendor sub-range level. Now, here also you can see either we can enter the vendor number manually or system can assign it automatically based on the number range, whether it is internal or external. Company code, here you need to enter the company code for which you are creating the vendor master record. Purchasing organization, the purchasing organization in which you are going to place the orders to supplier or supplier is going to supply that material in that purchasing organization, and account group. So just like in material master we saw material type, here it's account group. तो account group is important here because जैसे material type में material का number range account group control material type control करता है, field selection material type control करता है, वैसे vendor master में account group यहाँ पे role play करता है. So account group is used to group the vendors together. Similar vendors को अगर आपको नंबर रेंज असाइन करना है, ग्रुप ऑफ वेंडर्स को सिमिलर नंबर रेंज असाइन करना है, तो अकाउंट ग्रुप का यूज किया जा सकता है. ठीक है. नाउ आई विल क्रिएट फर्स्ट वन वेंडर. AG23 is our company code. Purchasing organization A100. Account group, you can use 0001 vendor and you can enter. What is the error? Account group 0001 uses external number assignment specify an account number. So you can see here account group 0001, the account group that I have entered, it has an external number assignment, not internal. So it means we need to give a number here. I'll change the account group instead to use a internal number range. Let me do one thing. Let me change the number range. SPRO IMG ट्रांजैक्शन कोड डायरेक्टली अगर ट्रांजैक्शन में जाना है यूज करके इसका, तो टी कोड फॉर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, जैसे मटेरियल मास्टर में हमने OMS2 देखा था, यहाँ पे क्या है OMSG, OMSG, जिसमें हम अकाउंट ग्रुप का डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, या फिर यू कैन फॉलो द पाथ SPRO IMG लॉजिस्टिक्स जनरल बिजनेस पार्टनर. कहाँ पे दिखता है? यहाँ पे देखिए बिजनेस पार्टनर vendors control define account group and field selection for vendor. Select this 0001 account group, go to its details, and you can see here number range 00 is assigned. Go back, check the number range. Here you can see define number ranges for vendor master record. Execute it. Here you can see the intervals. So 00 is an external number range. You can assign numbers from here to, this is the start number, this is the end number, and you can see the external checkbox is selected. Now in this number range there are 200 numbers. In this number range there are around 1000 numbers. In this number range there are around 1 lakh numbers, out of which 74 numbers are used. So I can use the 03 number range.
Okay, it is starting with 2 lakh and ending with 2,99,999. So it means 99,999 vendor master numbers can be created in this number range. Until now, 74 have been created. We can make use of this number range. I am copying this, or you can create new as well. Go to number range assignment, and here you can see account group को यहाँ पे number range assigned है. So here we need to change the number range 03. So number range is assigned to account group. So account group controls whether the number range is internal or external. Now if you go back and go to the setting of account groups, in 0001 new number range 03 is used, which is internal number range. Now here we can go back, go to XK01. Now enter, and you are in the transaction. Okay, and here you can see vendor internal. So once you save it, system will assign a number, internal number assignment it is. Okay, now title, you can select here company. If a vendor is a company, if a vendor is person, you can select Miss, Mistress, Mr, whatever it is, whatever is applicable, you can select here. Name of the supplier, जिस कंपनी से आप मटेरियल ले रहे हो उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का एड्रेस you need to maintain here. So this data is general data. You can see here no company code is specified, no purchasing organization is specified. So the details stored here are stored at client level. Those are not specific to any company code or any purchasing organization or any plant. So एक वेंडर से अगर आप आपके दो कंपनी में मटेरियल ले रहे हो तो वेंडर का नाम वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है. सो नेम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला है MRF टायर्स. सर्च टर्म, आप इसको सर्च करने के लिए कोई भी टर्म यहाँ पे डाल सकते हो. दिस इज यूज्ड फॉर सर्चिंग द वेंडर मास्टर रिकॉर्ड्स. स्ट्रीट, हाउस नंबर, ठीक है, एड्रेस का जो भी आपको डालना है. पोस्टल कोड, देन सिटी, country, and region is nothing but, when we talk about India, regions are nothing but states. Same way किसी और कंट्री में भी अगर वहां पे स्टेट्स हैं तो those states will appear as regions here. ठीक है. Other details like fax, email can be also entered. Now again you can see here this field is a display only field, this field is mandatory field, this field is mandatory field. यहाँ पे country mandatory था, city mandatory था I guess. PO box, postal code, company postal code, these fields are all optional fields. So field selection is applicable for vendor master record as well. Okay, and again only 4 attributes will be there. Either a field can be mandatory, can be optional, can be display only, or can be hidden. Hide, display, mandatory, optional, HDMO. ठीक है. सर सर Yes. इसमें वेंडर कोड है वो एक ही बार जनरेट हो सकता है ना स्पेसिफिक सब वेंडर के लिए? Yes, correct. Unique. It has to be unique. एक वेंडर को एक ही नंबर से जाना जाएगा. क्लियर? यस सर. Enter. Now you are into next details. Control data. In control data here you can see tax related information is there. तो वेंडर का जो भी टैक्स रिलेटेड डिटेल्स है those details can be entered here. वेंडर का टैन नंबर, वेंडर का पैन नंबर, वेंडर का GST registration, whatever it is that needs to be maintained on the screen. अभी स्क्रीन को आप देखोगे, ठीक है,
तो ये SAP स्टैंडर्ड स्क्रीन है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी GST नंबर वगैरह दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इन रियल टाइम सिस्टम में ये एज पर दी बिजनेस नीड वी कैन मॉडिफाई दिस, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फील्ड्स आपको ऑप्शनल दिख रही है, यहाँ पे सारी फील्ड्स ऑप्शनल नहीं होती, यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑप्शनल, बट जो मैंडेटरी है लाइक वेंडर का पैन नंबर, वेंडर का टैन नंबर या GST रजिस्ट्रेशन नंबर, दोज फील्ड्स विल बी मैंडेटरी इन द रियल टाइम सिनारियो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन फील्ड सिलेक्शन दैट कैन बी कंट्रोल। अभी यहाँ पे सब ऑप्शनल है, तो आई एम नॉट एंटरिंग एनीथिंग, just proceeding to the next screen. Payment transactions, again this is maintained at client level. Here you can store the bank information of the vendor, बैंक के डिटेल, वेंडर के बैंक के डिटेल, कंट्री, बैंक की, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम। Why this is needed? This is needed to do the payment to the vendor, ठीक है। Enter. Now this is contact persons, so you can maintain some names of the contact person from vendor side. वेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके नंबर्स यहाँ पे, उनके नाम यहाँ पे मेंशन हो सकते हैं, उनके नंबर्स यहाँ पे मेंशन हो सकते हैं, टेलीफोन नंबर्स, सो दैट if you have any query, if you have any issues, the business team can contact those people. Now we are into company code data, company code AG23. So the details that we are going to enter on this screen will be only applicable for AG23. अगर MRF टायर से आप आपके दूसरे कंपनी कोड में भी मटेरियल ले रहे हो, तो अगेन यू नीड टू एक्सटेंड vendor master to that company code because these details are company code specific. Reconciliation account. What is reconciliation account? What is reconciliation account? We will discuss in some time. Okay. So reconciliation account is a mandatory field here. So what is reconciliation account? Reconciliation account is used to reconcile the liability with multiple vendors. So reconciliation account generally depicts liability regards to multiple vendors. So what is meaning of this? Depicts liability with regards to multiple vendors. Okay, now let us understand this. Suppose there is a vendor A, vendor B and vendor C. Okay. Now अपने वेंडर ए को 10,000 का पीओ दिया, वेंडर बी को 20,000 का पीओ दिया, वेंडर सी को आपने 30,000 का पीओ दिया। पीओ के बाद वेंडर ने आपको मटेरियल दिया, मटेरियल के साथ उसने इनवॉइस दिया और हमने सिस्टम में इनवॉइस को वेरीफाई किया। इसने भी 10,000 का इनवॉइस दिया, हमने 10,000 का इनवॉइस बुक किया सिस्टम में। इसने 20,000 का दिया, हमने 20,000 का इनवॉइस बुक किया। इसने 30,000 का दिया, हमने 30,000 का इनवॉइस बुक किया, ठीक है। नाउ व्हेन यू बुक द इनवॉइस, इनवॉइस जब हम बुक करते हैं तो क्या होता है, these amounts are updated to reconciliation account. ये 10,000, 20,000 या 30,000 जो है ये reconciliation account में अपडेट होता है। Now in vendor A, B and C, if we have same reconciliation account, A के लिए भी reconciliation account यही है, B के लिए भी यही है, C के लिए भी यही है, क्योंकि ये vendor master में है। हमने vendor master क्रिएट करते समय तीनों में एक ही reconciliation account को एंटर किया।
तो ये तीनों इनवॉइस पोस्ट होने के बाद व्हेन यू डिस्प्ले दिस अकाउंट 164004, इसको जब आप डिस्प्ले करोगे तो इस अकाउंट का जो सम रहेगा, इस अकाउंट का जो बैलेंस होगा, इट विल बी सम ऑफ दिस थ्री वैल्यूज. So 60,000 is what will be there in the reconciliation account. इसका मतलब क्या है? 60,000 मेरा टोटल लायबिलिटी है, मतलब ये मुझे सप्लायर्स को पे करना है, अभी तक मैंने पे नहीं किया है. सो रिकंसिलेशन अकाउंट में वो रिकंसिलेशन अकाउंट जितने वेंडर मास्टर में है वो सारे वेंडर्स का मिला के कितना पेमेंट करना बाकी है. लायबिलिटी मतलब क्या? देना. कितना पैसा पे करना बाकी है. अगर यहां से 10,000 का पेमेंट हो जाता है, 10,000 का हमने पेमेंट कर दिया, तो ये अभी मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है. तो जैसे ही 10,000 का पेमेंट होगा, रिकंसिलेशन अकाउंट में से 10,000 रुपए माइनस होंगे, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 50,000 दिखाई देगा. सो रिकंसिलेशन अकाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टेल्स यू लायबिलिटी विथ रिगार्ड्स टू मल्टीपल वेंडर्स. मल्टीपल वेंडर्स क्यों? क्योंकि एक वेंडर के लिए एक रिकंसिलेशन अकाउंट नहीं होता है, एक रिकंसिलेशन अकाउंट अलग अलग वेंडर्स के लिए यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो सारे वेंडर्स का मिला के कितना पेमेंट अभी बाकी है, दैट इज स्टोर्ड इन द रिकंसिलेशन अकाउंट. तो व्हेन द इनवॉइस इज बुक्ड, एक एंट्री रिकंसिलेशन अकाउंट में होता है और एक एंट्री वेंडर के अकाउंट में होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेंडर ए का 10,000 रुपए पे करना है, ये वेंडर ए के अकाउंट में भी अपडेट होगा. मतलब वेंडर ए के लिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एक सबलेजर अकाउंट होगा, उसमें ये अमाउंट अपडेट होगा, प्लस वो इसमें भी अपडेट होगा. तो रिकंसिलेशन अकाउंट इसको क्यों बोला जाता है? तो ये वेंडर के इंडिविजुअल अकाउंट में जो भी देना बाकी है उसका सम वो इसके साथ मैच होना चाहिए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रिकंसिलेशन अकाउंट. सो रिकंसिलेशन अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिकंसिलेशन. मेरा जो पेमेंट सारे वेंडर का मिला के करना है, वो इंडिविजुअल वेंडर के रिमेनिंग पेमेंट को अगर मैं सम करता हूं तो उसके साथ रिकंसाइल होना चाहिए, मैच होना चाहिए. दिस इज अ सर मैंडेटरी फील्ड. यस. सर अभी सपोज एक वेंडर है और हमारी कंपनी मुंबई पुणे में, तो वही वेंडर मुंबई में भी सप्लाई करता है और पुणे में भी, कंपनी सेम है, हम्म. तो उसका अकाउंट से वो सेम ही रहेगा ना, ऐसा ऐसा सेम, पेमेंट? सेम ही रहेगा ना. सी, आपके दो प्लांट है, आपका कंपनी सेम है, तो आप एसएपी सिस्टम में उसके लिए क्या कर रहे हो? एक कंपनी कोड यू आर क्रिएटिंग, यू क्रिएट वन कंपनी कोड एंड यू क्रिएट टू प्लांट्स, राइट? आपने एक कंपनी कोड बनाया, दो प्लांट बनाए. अभी ये जो डेटा हम मेंटेन कर रहे हैं किस पे मेंटेन कर रहे हैं? कंपनी कोड लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं. इसका मतलब इस वेंडर से आप दोनों प्लांट में लोगे तो यही कंपनी कोड का डेटा उसको अप्लीकेबल रहेगा. इस कंपनी के जितने भी प्लांट होंगे वो सारे प्लांट में आप इस वेंडर के थ्रू परचेस कर सकते हो. ठीक है. ओके सर. Now I am entering because all other fields are optional here. Here you can see payment terms. Payment term is made mandatory here. What is payment term? So payment term is nothing but the terms of payments that we agree with the vendor. Vendor को पेमेंट कब करना है, इसके लिए उसके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ है बिफोर क्रिएशन ऑफ द परचेस ऑर्डर, पीओ क्रिएट करने के पहले वेंडर के साथ डिस्कशंस होते हैं, एंड देन द पेमेंट टर्म्स आर एग्रीड कि उसको पेमेंट कब करना है, इमीडिएटली करना है, 10 दिन बाद करना है, 20 दिन बाद करना है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली पेमेंट टर्म्स आर क्रिएटेड एंड यू एंटर द पेमेंट टर्म्स इन कंपनी कोड डेटा एज वेल एज परचेसिंग डेटा में भी हम इसको डाल सकते हैं. सो पेमेंट टर्म आई एंटर्ड हियर एज 0002. सो अलग अलग पेमेंट टर्म्स यू कैन सी हियर. 0001 पेएबल इमीडिएटली ड्यू नेट, मतलब जैसे ही मटेरियल रिसीव किया, इनवॉइस बुक किया, आपको पेमेंट करना है. 0002 within 14 days 5% cash discount, within 30 days 3% cash discount, within 35 days due date. इसका मतलब क्या है? अगर आपने पेमेंट 14 दिन के अंदर किया
कब से 14 दिन? या तो इनवॉइस क्रिएशन या इनवॉइस पोस्टिंग डेट। जैसे ही आपने इनवॉइस को वेरीफाई किया, उस दिन से अगर 14 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट करते हो तो वेंडर आपको 5% डिस्काउंट दे रहा है। 14 दिन के अंदर अगर आपने नहीं किया, 14 दिन के बाद 30 दिन के अंदर किया तो 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा। 30 दिन के बाद अप टू 35 डेज में अगर आपने किया तो आपको नेट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 35 डेज से ज्यादा लिए तो जो भी वेंडर के साथ हमारा एग्रीमेंट है उस हिसाब से वो आपको पेनाल्टी लगा सकता है। ठीक है। सो दिस पेमेंट टर्म्स आर क्रिएटेड एंड यूज्ड। वी विल सी पेमेंट टर्म्स, वी हैव अ चैप्टर ऑन पेमेंट टर्म्स, there we will see in details. So for now, payment terms are terms of payments that are agreed with the vendor and it is maintained in vendor master record. Then there is a checkbox, check double invoice. This checkbox you can select here. So what is this check double invoice checkbox? It checks the duplicate invoices. ठीक है। हमने वेंडर को एक पीओ दिया, 100 क्वांटिटी का पीओ है सपोज। फर्स्ट डिलीवरी वेंडर ने दिया 50 क्वांटिटी का और उसके साथ इनवॉइस भेजा, हमने वो इनवॉइस सिस्टम में बुक किया। सेकेंड डिलीवरी देते समय अगर वेंडर ने इनवॉइस नंबर सेम दिया और अगर हमने पोस्ट करने की कोशिश की तो सिस्टम हमको एरर देगा अगर हमने ये चेकबॉक्स सिलेक्ट किया है तो। सो दिस चेकबॉक्स विल इंश्योर दैट वी आर नॉट बुकिंग एनी डुप्लीकेट इनवॉइस, बिकॉज इनवॉइस नंबर मस्ट बी यूनिक। इनवॉइस हर एक डिलीवरी का इनवॉइस नंबर यूनिक होना चाहिए, सेम नहीं होता है। तो सिस्टम मेक श्योर that duplicate invoice numbers are not entered in the system. Enter. Enter. And now this is related to withholding tax. Nothing is mandatory here, skip it. And now we are into purchasing organization data. So the details that we are going to specify here are for purchasing organization A100. ओके। तो अगर हमारे पास मल्टीपल परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है और मल्टीपल परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में इस वेंडर के थ्रू हमको मटेरियल लेना है तो अगेन यू नीड टू एक्सटेंड दिस सप्लायर इन ऑल द परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन विच you want to receive materials from this supplier. Purchasing organization A100 is there. Order currency, in which currency you are going to place the order to supplier. एक मिनट। Okay, so the currency in which we are going to place the order to supplier, that we need to enter here. So order currency INR. Terms of payment again you can enter here. ठीक है। तो जब भी पीओ क्रिएट किया जाता है द पेमेंट टर्म यूज्ड इज परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट टर्म। एक पेमेंट टर्म हमने कंपनी कोड में देखा, एक पेमेंट टर्म हम परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देख रहे हैं। तो जो भी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन पे पेमेंट टर्म है दैट इज बाय डिफॉल्ट पिक्ड अप इनटू द परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर के लिए जो पेमेंट टर्म होता है वो यहाँ से लिया जाता है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी कोड से नहीं लिया जाता है। कंपनी कोड का कब यूज होता है वो हम बाद में देखेंगे जब हम इनवॉइस वेरिफिकेशन देखेंगे। ठीक है। नाउ ऑल अदर फील्ड्स आर ऑप्शनल हियर। I'll select this GR based invoice verification and default data material. ठीक है। Here you can specify the purchasing group as well, planned delivery time,
वेंडर कितना टाइम मटेरियल को डिलीवर करने में लेगा। अगर हमने आज पीओ दिया और 10 दिन अगर वेंडर को लगते हैं मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करने में, so that is updated here. Confirmation control we will see later, this is used in confirmations. So all these details if you maintain here, this will be defaulted in your purchasing info record or the purchase orders. तो ये डिफॉल्ट अगर करना है तो हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, नहीं करना है तो वी कैन स्किप इट। एंड नाउ यू कैन एंटर and it will take you to the next screen called as partner functions. ठीक है, what are partner functions we will discuss. Now for now I'll just enter and save it. So once you enter, click on save and the vendor master is created and the number assigned is 200075. Click on vendor, go to display और you can use XK03 to display. यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कोड को देख सकते हैं XK03। ठीक है, सो वेंडर नंबर डाला, कंपनी कोड डाला, A100 डाला। नाउ if you enter directly, it will not display you anything. The vendor master details are stored at 3 organizational levels. General data is stored at client level, company code data is stored at company code level, purchasing organization data is stored at purchasing organization level. तो अगर आपको वेंडर का जनरल डेटा डिस्प्ले करना है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। तो जो भी डेटा आपको डिस्प्ले करना है यू नीड टू सिलेक्ट इट, जो सिलेक्ट करोगे वही आप डिस्प्ले कर पाओगे। हियर यू हैव ऑप्शन टू सिलेक्ट ऑल एंड डीसिलेक्ट ऑल। ओके, अगर मुझे सिर्फ जनरल डेटा देखना है तो आई कैन सिलेक्ट जनरल डेटा एंड आई कैन hit enter and it will take me to the general data of the vendor master record. ओके, सो जनरल डेटा को अगर डिस्प्ले करना है तो जनरल डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू डिस्प्ले कंपनी कोड डेटा you can select here company code data. Now if you want to display the company code data you must have to specify the company code. अगर आपने कंपनी कोड को सिलेक्ट किया कंपनी कोड डेटा को और अगर यहाँ पे आपने कंपनी कोड एंटर नहीं किया तो यू विल नॉट बी एबल टू डिस्प्ले इट, आप उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते हो। द रीजन इज यू हैव सिलेक्टेड कंपनी कोड डेटा। तो कंपनी कोड डेटा अगर सिलेक्ट किया है तो कौन से कंपनी कोड का डेटा आपको देखना है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। once you enter the company code now you can view the company code data. same applies to purchasing organization data. अगर purchasing organization को डिस्प्ले करना है डेटा को तो आपको यहाँ पे purchasing organization एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी। तो अगर परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा देखना है कंपनी कोड नहीं डाला तो चलेगा, बट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डालना पड़ेगा। कंपनी कोड डेटा है देखना है तो कंपनी कोड डालना पड़ेगा, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं डाला तो चलेगा। अगर दोनों देखना है तो दोनों डालना पड़ेगा। ओके, तो जो भी डेटा हमको देखना है उस हिसाब से यहाँ पे हमको इनपुट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है।
display mode. ठीक है, in display mode you cannot change anything in the vendor master record. अगर आपको change करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, you can click here and you can do the changes. Same way xk02 is used for changing the vendor master record. आपको जो भी changes करने हैं you can use xk02. अभी xk02 में अगर आपको कंपनी कोड में कुछ चेंज करना है या परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज करना है तो यू कैन सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू चेंज द परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा। तो मैंने परचेसिंग डेटा सिलेक्ट किया, आई नीड टू एंटर द परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन हियर। यहाँ पे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डालना पड़ेगा, कंपनी कोड नहीं डाला तो भी चलेगा। नाउ आई एम इनटू परचेसिंग डेटा एंड आई एम इनटू चेंज मोड। इफ आई वांट टू चेंज एनीथिंग हियर आई कैन चेंज हियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने परचेसिंग ग्रुप डाला P01, प्लान डिलीवरी टाइम डाला 10 दिन। ठीक है, ऑटोमेटिक परचेस ऑर्डर का चेक बॉक्स सिलेक्ट किया, एंटर किया, सेव किया। नाउ यू गो टू xk04 to display the changes on the vendor master record. So enter the vendor, enter the purchasing organization A100 if you only want to display the changes in purchasing organization A100. If you remove this, it will display all the changes in all the purchasing organizations. Enter here. एक मिनट, आई विल बी बैक। So you can see here the fields that I selected, automatic PO, plan delivery time and purchasing group are displayed here in display changes. तो जो changes हमने किए थे वो यहाँ पे हमको display हो रहे हैं. You can select this and go to its details and you can see when the field is updated and who updated it. Date you can see here, new value, old value you can see here, but the user who changed it, select it, go to all changes, date and time you can see here. You also see the username as well here. Once you double click on this you can see the user as well, which user has changed this field. Clear? Any doubt?
So this way you can display the changes on the vendor master record. सर एक बार वेंडर कोड क्रिएट हो जाने के बाद में उसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं ना? We can XK02 में कर सकते हैं ना, कोड को चेंज नहीं कर सकते. दिस नंबर कैन नॉट बी चेंज. ऑल अदर डिटेल्स लाइक उसका नाम होगा, कंपनी कोड में जो रिकंसिलिएशन अकाउंट चेंज करना है किया जा सकता है, पेमेंट टर्म्स को चेंज करना है किया जा सकता है. ओके ठीक है. ओके. Now XK05 block and unblock vendor. Now what is blocking and unblocking of the vendor? So अगर वेंडर को टेम्पररी कुछ दिनों के लिए ब्लॉक करना है, अभी वेंडर को ब्लॉक कब किया जा सकता है? कैन समवन टेल मी, वेंडर को कौन सी सिनेरियो में ब्लॉक किया जाता है? किसी को आइडिया है? सर उसने जब मटेरियल में कुछ इशू किया हो, सप्लाई उसका इवोल्यूशन 0 में हो, तब किया जा सकता है. यस ठीक है. व्हेन यू हैव इश्यूज विद द वेंडर्स मटेरियल्स, वेंडर मटेरियल का क्वालिटी जैसे एग्री किया था वैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, या कुछ प्रोडक्ट्स डैमेज आए हैं, यू आर टॉकिंग टू हिम रिलेटेड टू, या तो उसका पेमेंट होना चाहिए या रिप्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है. सो इन सर्टेन सिचुएशंस द बिजनेस may decide to block the vendor for a particular time period. तो उसको ब्लॉक किया जा सकता है एंड वो इशू रिजॉल्व होने के बाद वापस उसको अनब्लॉक करना है. अगर अब कंपनी डिसाइड करता है कि उसको वापस उसके साथ बिजनेस करना है, उसको परचेस ऑर्डर्स वगैरह देना है, तो उसको वापस अनब्लॉक भी किया जा सकता है, ठीक है. सो ब्लॉक एंड अनब्लॉक विल अलाउ टू ब्लॉक द वेंडर temporarily and then again unblock the vendor master record. So there are two types of block. One block is purchasing organization block, the other is company code level block. तो कंपनी कोड लेवल पे ब्लॉक करना है या परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ब्लॉक करना है. नाउ व्हाट इज परचेसिंग ब्लॉक एंड व्हाट इज कंपनी कोड लेवल ब्लॉक? ब्लॉक अनब्लॉक वेंडर, ठीक है. कंपनी कोड ब्लॉक, blocking of vendor at company code level. So when this is done, कंपनी कोड पे ब्लॉक कब किया जाता है? When you don't want the vendor invoices to be booked and to stop the payment of vendor. तो कंपनी कोड पे ब्लॉक कब किया जाता है? आपने मटेरियल ऑलरेडी सप्लायर से लिया है, मटेरियल में कुछ इशू आया, आप वेंडर के साथ डिस्कस कर रहे हो कि या तो आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे या फिर उसने मटेरियल को रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है. ऐसा कुछ डिस्कशन बिजनेस का वेंडर के साथ चल रहा है. तो उस केस में आपको वेंडर का पेमेंट नहीं करना है. सो यू द बिजनेस हैज डिसाइडेड नॉट टू पे द वेंडर, वेंडर का पेमेंट नहीं होना चाहिए और उसका इनवॉइस भी सिस्टम में बुक नहीं होना चाहिए, ठीक है. क्योंकि अगर इनवॉइस बुक हो गया तो नेक्स्ट स्टेप इज पेमेंट. अगर किसी ने गलती से इनवॉइस को बुक कर दिया तो गलती से पेमेंट भी हो जाएगा, नेक्स्ट पेमेंट रन में उसका पेमेंट भी हो जाएगा. तो आप जो बिजनेस का जो इंटेंशन है कि वेंडर ने मटेरियल खराब दिया है तो उसका पेमेंट नहीं होना चाहिए. सो यू कैन प्लेस अ ब्लॉक एट कंपनी कोड लेवल. तो जैसे ही आप कंपनी कोड लेवल पे ब्लॉक कर दोगे, द इनवॉइस कैन नॉट बी पोस्टेड एंड सिंस इनवॉइस इज नॉट पोस्टेड पेमेंट कैन नॉट बी डन. अगर इनवॉइस ऑलरेडी पोस्ट हुआ है बट पेमेंट नहीं हुआ है और आपने अगर कंपनी कोड पे ब्लॉक किया तो इवन इफ द इनवॉइस इज पोस्टेड पेमेंट विल नॉट बी डन. तो पेमेंट को ब्लॉक करना है या इनवॉइस को ब्लॉक करना है तो वी कैन ब्लॉक द वेंडर एट कंपनी कोड लेवल. द अदर ब्लॉक इज purchasing organization block.
blocking the vendor at purchasing organization level. So if you block a vendor at purchasing organization level, अगर आपने एग्जिस्टिंग पीओ दिया है और उसका मटेरियल आया है, मटेरियल आया है, मटेरियल इज रिसीव्ड, ठीक है, तो उसका अगर आपने सिर्फ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन पे ब्लॉक किया तो ऑलरेडी रिसीव्ड जो मटेरियल है, जो हमने पीओ दिया है, उसका मटेरियल आया है, तो उसका इनवॉइस, उसका पेमेंट होगा. Purchasing organization block will ensure that no new purchase orders will be placed on that vendor. उस वेंडर को नया कोई भी पीओ नहीं जाएगा. ठीक है, तो बिजनेस ने डिसाइड किया कि मटेरियल अभी खराब भी आया है, तो चलो इस बार का पेमेंट उसको कर दो, नेक्स्ट पीओ उसको नहीं जाना चाहिए, इसके बाद हम उसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे. इन दैट केस वी कैन प्लेस अ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक. So purchasing organization block will ensure no new purchase orders will be placed. Any doubt, any confusion? But existing purchase orders can be received, invoiced and paid. जो ऑलरेडी उसको पीओ दिए हैं, उसका गुड्स रिसिप्ट हो सकता है, उसका इनवॉइस हो सकता है, उसका पेमेंट हो सकता है, बट नए परचेस ऑर्डर्स उस वेंडर को नहीं जाएंगे. दैट इज परचेसिंग ब्लॉक. ठीक है, now if you come here, enter the company code as well here, AG23. Now here you can see block, unblock vendor, company code, purchasing organization, posting block, all company codes, specified company code. If you select all company codes, तो इस वेंडर से जितने भी कंपनी कोड में आप मटेरियल ले रहे हो, सब कंपनी कोड में उस पे पोस्टिंग ब्लॉक लगेगा. पोस्टिंग ब्लॉक लगेगा मतलब कंपनी कोड का ब्लॉक लगेगा, मतलब इनवॉइस नहीं पोस्ट होगा, पेमेंट नहीं पोस्ट होगा. अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाइड कंपनी कोड को सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये वेंडर सिर्फ इस कंपनी कोड के लिए ब्लॉक होगा. इस वेंडर के इस कंपनी कोड में कोई भी इनवॉइस या पेमेंट पोस्ट नहीं होगा. सेम वे परचेसिंग ब्लॉक, ऑल परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर सिलेक्ट किया तो सभी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये वेंडर का जो है परचेसिंग ब्लॉक होगा, मतलब इस वेंडर पे नए पीओस नहीं जाएंगे. और आपने सिलेक्टेड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट किया तो सिर्फ इसी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में उसको नए पीओ नहीं जाएंगे. अगर इस वेंडर से आप दूसरे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू परचेस कर रहे हो तो वहां पे आपके परचेस ऑर्डर्स प्लेस हो सकते हैं, आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, ब्लॉकिंग फॉर क्वालिटी रीजंस. तो सप्लायर की क्वालिटी बेस्ड, सप्लायर का जो भी मटेरियल आ रहा है उसका क्वालिटी चेक करके क्वालिटी के रीजंस भी हम डिसाइड कर सकते हैं. Based on the quality reasons, we can decide whether to block the purchase order for this vendor or whether to block for quotation and purchase order, whether to block for goods receipt as well, block in source determination and total block. Total block मतलब हर जगह पे फिर सिस्टम आपको एरर देगा कि ये वेंडर ब्लॉक्ड है. सोर्स डिटर्मिनेशन क्या होता है आगे चल के पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा. ब्लॉक परचेस ऑर्डर, तो अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो ये पीओ नहीं बनने देगा. ठीक है, तो ये रीजंस हम क्रिएट कर सकते हैं, दोज रीजंस कैन बी एडेड हियर. Clear? Now suppose I select here specified company code and save it. ठीक है, copy this supplier. We have created materials yesterday. Now I'll create a purchase order. What was the material that we created? You can see in MM60 transaction code. So MM60 transaction code gives you material list,
प्लांट वाइज या यूजर वाइज भी आप देख सकते हो। यहाँ पे क्रिएटेड बाय में अगर आपने आपका यूजर आईडी डाला तो आपने जो मटेरियल्स क्रिएट किए हैं वो वहाँ पे सिस्टम आपको डिस्प्ले करेगा। प्लांट क्या है, AP11 एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, एंड वी हैव दिस टू मटेरियल्स दैट वी क्रिएटेड। I'll copy this material and we will create a purchase order. Okay, ME21N, यहाँ पे वेंडर, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन A100, परचेसिंग ग्रुप P01, कंपनी कोड AG23, मटेरियल सॉरी what is the error, purchasing organization A100 not responsible for AP11, तो इसको असाइन करना पड़ेगा SPRO IMG enterprise structure assignment, assign purchasing organization to plant, A100 is assigned to PA11। मैंने क्या यूज किया है यहाँ पे, AP11 डाला। ओके, यहाँ पे मैंने AP11 डाला था सही। Check and you can save the purchase order। ठीक है, so if you see this vendor we have blocked at company code level। XK05 में हमने इस वेंडर को कंपनी कोड लेवल पे ब्लॉक किया है, स्पेसिफाइड कंपनी कोड। ठीक है, तो कंपनी कोड लेवल पे अगर हमने ब्लॉक किया तो पीओ कैन बी क्रिएटेड, क्योंकि पीओ पे कंपनी कोड का डेटा नहीं यूज होता है, पीओ पे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का डेटा यूज होता है। इनवॉइस और पेमेंट के टाइम पे कंपनी कोड का डेटा यूज होता है, तो इनवॉइस और पेमेंट अगर स्टॉप करना है तो कंपनी कोड पे ब्लॉक करना है, नया पीओ अगर ब्लॉक करना है तो परचेसिंग ब्लॉक करना है। अगर मैं यहाँ पे परचेसिंग ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, नाउ दिस पीओ आई कैन सेव, ये पीओ मैं फिर भी सेव कर सकता हूँ। ठीक है, अभी नया पीओ अगर मैं बनाऊंगा तो सिस्टम विल नॉट अलाउ मी टू क्रिएट द पीओ बिकॉज ऑफ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक। वेंडर डाला, A100 01 AG23, मटेरियल क्वांटिटी प्लांट, एंटर। वेंडर ब्लॉक्ड फॉर परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन A100। गॉट इट, क्लियर है? ठीक है, तो पीओ नहीं बनने देगा। ठीक है, और अभी जो पीओ हमने सेव किया था, ये जो पीओ हमने सेव किया था, इसका मैं गुड्स रिसिप्ट करके अगर इनवॉइस करता हूं तो इनवॉइस के टाइम पे सिस्टम मुझे एरर देगा।
So I'll first do the goods receipt. Transaction code is MIGO. Goods receipt, purchase order, PO number, execute, enter the quantity here, item okay, where. अभी वेंडर मास्टर कंप्लीट होगा, कल वेंडर अकाउंट ग्रुप देखेंगे, कल वेंडर अकाउंट ग्रुप देखने के बाद परचेसिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड देखेंगे और उसके बाद इन डिटेल परचेस ऑर्डर को कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने इसको पोस्ट किया, गुड्स रिसिप्ट भी हो गया। नाउ आई विल गो टू इनवॉइस वेरिफिकेशन मीरो, and in invoice verification system will give us a error AG23। यहाँ पे PO नंबर डाला, एंटर किया, इनवॉइस डेट, calculate tax, and you can see here account 2000075 AG23 is blocked for posting. So this will not allow you to post the invoice. तो कंपनी कोड लेवल पे अगर आप ब्लॉक करोगे तो इनवॉइस और पेमेंट नहीं होगा। यू कैन सी एंटर इनकमिंग इनवॉइस कंपनी कोड AG23। तो फाइनेंशियल जो डेटा होता है that is always updated at company code level. So at company code level, the company code data is used at the time of invoice creation and at the time of payment. So when you block the vendor master at company code level, invoice नहीं होगा, payment नहीं होगा। If you block at purchasing organization level, तो वेंडर को नया पीओ नहीं दिया जाएगा, एग्जिस्टिंग पीओ के अगेंस्ट पेंडिंग ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट किए जा सकते हैं। So this is block and unblock the vendor master record. And the last is XK06, which is marking vendor for deletion. आप वेंडर को डिलीट कर सकते हैं, जैसे मटेरियल मास्टर को हमने डिलीशन का फ्लैग लगाया था, वैसे वेंडर मास्टर को भी डिलीशन फ्लैग लगाया जा सकता है। इफ यू सिलेक्ट ऑल एरियाज इन ऑल कंपनी कोड्स, all purchasing organizations, this will be blocked. If you select selected company code, तो ये इस कंपनी कोड में डिलीट हो जाएगा। If you select selected purchasing organization, this vendor will be deleted in this purchasing organization. General data, selected company code including general data. तो this is again आपको जनरल डेटा भी डिलीट मार्क करना है और सिलेक्टेड कंपनी कोड का डेटा, इस कंपनी कोड का डेटा प्लस जनरल डेटा अगर आपको ब्लॉक करना है तो यू कैन यूज दिस। So this is how you can use these transactions XK01 to XK06. Now assignment for today is you need to create at least 5 vendor master records, ठीक है, and let me know if there is any issue tomorrow, ठीक है। If possible, create purchase order, create goods receipt also, block unblock को check करो, ठीक है, and let me know if there is any issue tomorrow. Tomorrow we will see there are other transaction codes also for creation of vendor master record that starts with M and F. Okay, FK01 to FK06, same meaning, ठीक है। FK01 is to create, FK02 to change, FK03 to display, FK04 to display changes, FK05 to block unblock, and to delete FK06 same way, MK01, MK02, MK03, MK04, MK05। तो कई कंपनीज में फाइनेंस डिपार्टमेंट और परचेसिंग डिपार्टमेंट में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को वेंडर मास्टर में सिर्फ कंपनी कोड का डेटा मेंटेन करने के लिए अलग से एक्सेस दिया जा सकता है।
परचेस डिपार्टमेंट को सिर्फ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मेंटेन करने के लिए अलग से ट्रांजैक्शन कोड का एक्सेस दिया जा सकता है। उस केस में ये ट्रांजैक्शन कोड्स का यूज होता है। FK01 to FK06, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो यूजर्स हैं उनको इन ट्रांजैक्शन कोड का एक्सेस दिया जाता है। परचेस डिपार्टमेंट के जो यूजर्स हैं उनको इस ट्रांजैक्शन कोड का एक्सेस दिया जाता है। सो फर्स्ट, create 5 vendor master records using this XK01 transaction code. Do the changes, display the changes, display the vendor master record, block, unblock the vendor master, delete the vendor master. Then try to create using FK01 and MK01 as well. Tomorrow I will tell you the difference between these two transaction codes in detail, and then we will see